Is my skin visible to you all guys? Yes, no, maybe. Not visible? Okay, I'll share it. So this is the question which I have thought we'll plan and we'll execute this for cookie. What it says, write a form to accept a student information such as name, class, and address. So there'll be first HTML page, okay, student.html, which will ask to enter the name, class, and address. So let's say the student enters Alice in TY, okay, or BE final year, okay, and address is Pune, and then she will say submit. Once she says submit, a form will open asking her to enter her marks for Java, PHP, software testing, IT, practical, and project. And then she will click on get result. Okay. So then she'll enter her marks 87, 91, 93, 96, 98, 98. Okay. And when she clicks on get result, it should display all these properly well formatted in HTML document sort of, along with the total and along with the percentage and along with the grade. So let's say total out of 600, if she scores 550, or let's keep it simple, 540. So what's her percentage? 90. And what's her grade? Distinction. This should be displayed on the third form. So now, student.html will submit and will go to marks servlet. Will go to which servlet? Marks servlet will accept the marks, and then when marks servlet will submit, it will go to result servlet. Will go to result servlet. So marks servlet can read Alice, BE, and Pune, correct? Because they are adjacent. How does result servlet read Alice, BE, and Pune? So we will store these into 3 cookies over here. We'll make 3 cookies. In the marks servlet, we'll make how many cookies? We'll make 3 cookies. Cookie C1 is a new cookie. And we'll store this data over there in the key value page. So what? S name, value, whatever we have fetched in the string, right? Now you all know. You all can fetch Alice, B, and Pune over here by get parameter. I can fetch Alice, BE, and Pune in the marks servlet. How do I fetch it? Yes, Shivam. From student.html, whatever name, class, and address I'm entering, how will I read that in the marks servlet? By using init parameter, right? So by using init parameter, by getting get parameter, I will read these 3 things because they are into adjacent file and store them in a variable string. Let's say S1 is my, or let's say what, student name, and second would be, and third would be student name, student class, and student address. And then I will say S name will be which value? Student name. Okay. And like this, how many cookies will I set?
Like this, how many cookies will I set, guys? 3 cookies. C1, C2, C3, and second cookie will be S class, and third would be S add. Here I will say what? Student class, and third I will say stud add. Okay, and then I will make a hyperlink. Then I will make a hyperlink. Say what? Go to marks. No, you have to enter the marks. You have to enter the marks. No, enter the marks, and then we will go to the result page. Correct? And here then I have to give href equals to whatever I'll give marks, and I'll route it to blah blah blah. Now when I come to the marks, okay, then I'll have to enter all this also, no? Then I have to make a form. Once I read that, then I'll have to make a form for this. So we will not use hyperlink, we'll use the form. So what will we do? We'll make remember we had made for hidden fields we had made. So we'll make a form now, and that form will accept how many things? 5 things. Okay. That form will accept how many things? 5 things. And then when I click on submit, we'll go to the what? Action of the form. And if this form action is result, we'll go to which servlet? Result servlet. Then I can fetch from get parameter, because this is adjacent, right? The mark servlet and result servlet are adjacent, so I can fetch all these percentages from get parameter. But from where will I fetch the Alice, B, and Pune? From the cookie. Okay, let's try to program this step by step. Things should fall into place. Is my Eclipse invisible to you all, guys? Visible? Now it's visible? Okay. ITP Shivam. So first, which form will I make? Student details, right? Huh? Student detail.html, no? So it's quite similar to this one. So can I just not copy this and paste it and say it as student details? Call it as. So I have a student detail.html. What all do we need to accept now from here? Name, class, and address. So enter student name, enter student class, and enter student. This will hit save. So I will say what? What should we go here? Go to, okay, next. I will just say what? Next step. So when he clicks on submit, we'll go to the next button and we'll say what? We'll go to where? What have we given? Have we given over here any action? We have not given any action, right? So we'll go to the, okay, I'll just give a normal stud. What did I give? Action as stud. Now what should we do now? Next step. We have XML and create a pair of servlet. Okay. And what should we do? Slash stud. Give it to student. Take this student and
Go to which servlet? Which student? Which servlet? Marks servlet. Which servlet? Marks servlet. So we'll go to which servlet? Marks. Do we have this servlet? No, we don't have it. So let's come here, right click, new, make a servlet by what name? ठीक है, तो फिनिश कर दिया। अब हम आ गए मार्क्स सर्वलेट में, तो कैसे रीड करेंगे मार्क्स सर्वलेट के अंदर? हाँ भाई, रीड कैसे करेंगे? रीड ये तीन चीजों को जो हम लोग रीड करते आए ना इतने दिनों से। हाँ, इतने दिनों से कैसे रीड करते हैं? ऐसे रीड करते हैं ना, ऐसा। ये आ गया, और T1 T2 और T3 है ना। और T1 T2 T3 में है क्या? बोलो, T1 T2 T3 में क्या क्या है? T1 में क्या है? स्टूडेंट नेम है क्या? और T2 में क्या है? स्टूडेंट क्लास। और T3 में क्या है? स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक फॉर्म। क्या बनाएंगे? वो हमने बनाया था फॉर्म, मालूम किस पे? हिडन फील्ड से बनाया था। किससे बनाया था? तो लॉगिन हिडन फील्ड जो था ना, वह हमने एक फॉर्म बनाया था, याद है? देखो, तुम लोग का कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, लिखने का टाइम नहीं है इतना, और वो कोड अपना ही है। ठीक है, अब यहां से कितनी चीज चाहिए अपने को? यहां से कितने चीजें चाहिए? बोलो भाई। तो नेम इज दिस कैपिटल गिव नेम ना, वैल्यू तो देना नहीं अपने को। सो इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, और उसके पहले क्या दिखाना है? एंड जावा ना, तो ये जावा, और इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, टी जावा कर देते। क्या कर देते? टी जावा। अब बोलो कितने चाहिए, और बी आर दे दिया। 6 चाहिए ना, 6। 4 सब्जेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल, है ना। तो 4 सब्जेक्ट कौन से थे? जावा था, पीएचपी था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग था, और आईटी। आईटी का सब्जेक्ट है क्या? आईटी तो वो है ना, फैकल्टी है ना, स्ट्रीम है ना आईटी। तो एम सी एस आई टी एसक्यूएल कर देते। ठीक है, तो टी जावा, टी पीएचपी, और टी टेस्ट, और टी एसक्यूएल, और प्रैक्टिकल आणि प्रोजेक्ट। सो टी प्रैक, टी प्रोज। ठीक है, एंड नाउ व्यू रिजल्ट। क्या बनाएंगे सबमिट पे? क्या बताएंगे? व्यू योर रिजल्ट। अब जब व्यू रिजल्ट करेंगे तो वो फॉर्म की किस पे जाएगा? एक्शन पे जाएगा। उसका नाम क्या दे दिया हमने? रिजल्ट। तो कहाँ जाएगा? रिजल्ट सर्वलेट पे जाएगा। मुझे वहां पर ये भी दिखाना है नाम, क्लास और एड्रेस। ये चूंकि फॉर्म तो एडजेसेंट है, तो वो मैं फेच कर लूंगा कैसे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टी जावा टी पीएचपी से। बट अभी ये कैसे फेच करेंगे उधर? तो क्या बना देंगे हम लोग? कुकी बना के सेव कर देंगे ब्राउजर पे। तो कितने कुकी बनाएंगे? क्या नाम? नाम होना चाहिए स्ट्रिंग। तो आप सेम नाम भी रख सकते हो, सेम वैल्यू रख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो आप सेम भी रख सकते हो। कोट्स डबल कोट्स है क्या सिंगल कोट्स है जावा में? जावा स्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स है। ठीक है, ये क्लास को इंपोर्ट किया क्या? कुकी कहाँ से? सर्वलेट से क्या टॉम कैट से? जावा एक सर्वलेट से। ठीक है, अब कितने कुकी बनाऊं मैं? तो ये C1 C2 C3 ये ऑब्जेक्ट्स है कुकी के। कुकी तो ये है जो यहाँ बना रहा हूँ, ये कुकी के नाम है।
तो कुकी जो स्टोर होगी किस नाम से स्टोर होगी? C1 से क्या स्टूड नेम से? स्टूड नेम से। वापस यहीं कर देंगे सेम। ठीक है भाई। और हमको कुकी को रिस्पॉन्स के साथ भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुकी बन तो जाती है बट फिर जो रिस्पॉन्स है उसके साथ में ऐड कुकी कौन सी? C1 C2 और क्योंकि कुकी क्रिएट होती है सर्वर पे और रिसाइड होती है कहाँ होती है? रिसाइड वेब ब्राउजर पे। तो रिक्वेस्ट के साथ सारे कुकीज आते हैं, रिस्पॉन्स के साथ जितने आए थे प्लस जो ऐड हुए थे वो सब जाते हैं। ठीक है। तो एक फार्मर के पास 4 शीप है, वो उनको मॉर्निंग में छोड़ता है ग्रेजिंग के लिए फार्म पे। तो वो 9 बजे जाते हैं फार्म पे और शाम को 6 बजे आते हैं फार्म से। तो 4 गए तो कितने आते? 4 आते हैं। कभी 4 गए और 6 आते। वो उसके दो दोस्त बन गए, उनको भी लेके आ गए वो लोग। तो गए कितने थे और आए कितने? तो अभी जब रिक्वेस्ट आएगा तो कितने कुकीज आएंगे लोकल होस्ट से? 0। एक आएंगी कल वाली हिट काउंटर 1। कौन सी आएगी? हिट काउंट आई कितनी? 1। और वापस आएगी, वापस कितनी आई रिटर्न में? 4। हिट काउंटर भी और ये। ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्स से रिक्वेस्ट से कुकी आती है, रिस्पॉन्स से कुकी वापस क्योंकि रहती है वो किधर है? ब्राउजर पे। ठीक है। सर्वर पे से होती है मैनिपुलेट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट होती है किधर? सर्वर पे। और रिसाइड क्या करती है कुकी? क्लाइंट साइड वेब ब्राउजर। ठीक है। तो इसके लिए यू हैव टू सेंड द कुकी बैक विद द रिस्पॉन्स। एंड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन द व्यू रिजल्ट इट विल गो टू विच एक्शन नाउ? रिजल्ट। ये एक्शन है क्या हमारे पास? नहीं है। तो वापस जोड़ी लगेगी एक। क्या नाम रखा है हमने इसका? रिजल्ट। तो क्या ये हैंग क्यों होना शुरू हो गया? इतना बढ़ गया ना ये साइज इसका। व्यू रिजल्ट सर्वलेट, ये है क्या हमारे पास? यस, नो, मे बी, नॉट देयर। सो न्यू, मेक अ सर्वलेट by what name? सो जो ऊपर के 3-4 आइटम है वो ले लेते सेम टू सेम, है ना? तो कहाँ गया हमारा व्यू रिजल्ट? सब लास्ट में आ गया। ठीक है। कहाँ गए? डू गेट में आ गए। सो ये आ गया। फिर वो 3 चीजें क्या क्या लेनी थी अपन ने? कौन सा था वो? मार्क सर्वलेट क्या? वो 3 चीजें क्या लेनी थी अपन ने? ये 3 चीजें ना। तो अब ये कहाँ से लेंगे हम लोग? ये कहाँ से लेंगे 3 चीजें? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे? तो सारे कुकीज आएंगे ना अपने अभी। तो यहाँ पर वो कुकी को रीड कर रहा है। सो स्टूडेंट नेम। तो कैसे करते हैं हम लोग? अरे कुकी किस में आएंगे? एक कुकीज आ रहे में इक्वल्स टू क्या? कुकी आए कौन सा ऑब्जेक्ट से है? बोलो भाई। आए कौन सा ऑब्जेक्ट से है? रिक्वेस्ट से। सारे कुकीज रीड कर लिया मैंने, कुकी में आ गए। अब क्या बोलेंगे? तो एक फॉर लगा देते हैं अगर,
और एक एक कुकी को रीड कर लेंगे। कहाँ से? कुकीज से। ठीक है, और क्या करेंगे अभी? नल क्यों आएगा अभी? रिजल्ट पे तो 4 कुकी भेज रहे ना अपन। हाँ, वो तो भी यहाँ करना पड़ेगा तेरे को, नल चेक। इफ कुकीज इज इक्वल टू नल, डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर देंगे। और नहीं है तो इधर एफ आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? कुकी डॉट गेट नेम, है ना? इफ कुकी डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स, क्या भाई? इक्वल्स व्हाट? कौन सी कुकी रीड करना है अपने को? इफ कुकी डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स कौन सा? स्टूडेंट नेम। तो क्या कर देंगे? यहाँ पर वापस स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम ले लेंगे, इक्वल्स टू कुकी डॉट गेट वैल्यू। इसका वैल्यू किस में आ जाएगा? स्टूडेंट में। क्या कन्वर्ट हो गया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्या बोल रहा है ये? ओके, दो दो हो गया ना स्टूडेंट नेम, देखेंगे बाद में। ऐसे ही फिर बाकी तीनों को भी कर लो, तो वो 3 बार लूप चलेगी और एक टाइम पे एक इफ कंडीशन ट्रू होगा ना, एक टाइम पे कोई एक ही इफ कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि कुकी का ऑर्डर रैंडमली आते हैं वो। ओके, अभी अगर इनको हमने सिर्फ यहाँ पर ही डिक्लेयर किया है तो ये लाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कुकीज आए हैं, मुझे मालूम है कि कुकीज आए हैं। Okay, so I've taken 3 variables: stud name, stud class and stud address. I iterate to the cookies. So एक एक कुकी रैंडमली आती रहेगी कुकी के अंदर। लेट से फर्स्ट कुकी आ गई हिट काउंटर 1, तो हिट काउंटर 1 किससे इक्वल हो रहा है क्या? तो उसका वैल्यू का स्टोर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट कुकी आ गई स्टूड क्लास, क्या आ गई? इससे इससे इक्वल हो रही है, इससे इक्वल हो रही है, यस। तो क्या कर देंगे? फिर इसको डाल देंगे स्टूड क्लास वाले वेरिएबल में डाल देंगे। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप उसको स्विच कर सकते थे। स्विच अगर हमने किया तो, अगर मैं स्विच कर दूं तो कुकी कंट्रोल जेड, हाँ देखो ये एक तरीका है, और एक तरीका आपको और दिखाता हूं, आपको जो समझ में आए वो कर लो। हम लोग क्या करेंगे? स्विच कर देंगे किसको? एक एक कुकी का क्या? गेट नेम। तो फर्स्ट इटरेशन में कोई भी कुकी आ गई, बट हम लोग किसके लिए तैयार है कि हमको कोई कुकी चाहिए किस नाम की? अगर स्टूड नेम की आ गई तो किस कौन से केस में जाएगी? स्टूड नेम में। उससे क्या होगा? उससे फिर हम लोग उसका स्टूड नेम को इनिशियलाइज कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। मेक सेंस? यस और नो? फिर अगला कौन सी बनेगी?
अगर अगली कुकी आ गई किसकी, स्टूड क्लास की आ गई, तो उससे क्या इनिशलाइज कर देंगे, उसका स्टूड क्लास को इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है। और अगली कुकी अगर किसकी आ गई, स्टूड एड्रेस की आ गई, तो उससे उसका स्टूड एड्रेस डिलीट कर, ठीक है। तो अगर 15 कुकी आते हैं, पर मुझे मेरे सिर्फ ये 3 पे नजर रखना है, ठीक है। सो वॉट एवर स्टाइल सूट्स यू, लेट्स ट्राई टू डू विद द स्विच वाला, देख लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो ये 3 तो मुझे मिल गए यहाँ पर, और बाकी की चीज मुझे कहाँ से मिलेगी, गेट पैरामीटर से मिलेगी, करेक्ट। तो गेट पैरामीटर कैसे करेंगे अभी, जब हम लोग करते आए हैं इतने दिनों से ना, गेट पैरामीटर तो हम लोग बाय हार्ट करेंगे। ये ऊपर के 2 लाइन लिख दिया ना, ठीक है। अब मुझे चाहिए 6 ऐसे, कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। क्या नाम थे उनके, टी टी जावा, टी पी एच पी, टी टेस्ट, यस, और टी टी एसक्यूएल क्या, और टी ट्रैक, और टी प्रोज, सही है। और ये क्या थे, मार्क्स थे ना, तो क्या होंगे ये, इंटीजर डॉट पार्स इंट, करेक्ट। सही है। सो फार सो गुड। देन आई नीड टू वैल्यू ऑल्सो इंटीजर होना चाहिए ना, तो इंट क्या बोलेंगे, जावा, ठीक है। अब ये कैसे पैकेज से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, ये जावा क्या कर सकता है, कोई भी पैकेज से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, जावा मार्क्स कर देते हैं। अब ये अपने को करना पड़ेगा 6 बार, यहाँ तक, बाद में चेंज कर देंगे। अरे किसको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, और किसको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसका, ब्रैकेट, ब्रैकेट इज एक्स्ट्रा क्या, पास इंट का ब्रैकेट एक्स्ट्रा था, ओके। एंड जावा मार्क्स, देन पीएचपी मार्क्स, एंड देन टेस्टिंग के मार्क्स, फिर एसक्यूएल के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, और प्रोजेक्ट के मार्क्स। अब जब ये मिल गए, तो टोटल टोटल कैसे निकालेंगे अभी, इंटीजर टोटल मार्क्स इक्वल टू जावा मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स, ओके, प्लस मैं ऐसे लेते आ रहा हूँ जो फर्स्ट में आ रहा है, प्रोजेक्ट मार्क्स प्लस एसक्यूएल मार्क्स, प्लस क्या बच रहा है अभी, हाँ, टेस्ट मार्क्स हो गए 6, जावा मार्क्स, पीएचपी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, प्रोजेक्ट मार्क्स, एसक्यूएल मार्क्स, टेस्ट मार्क्स, और डबल परसेंटेज क्या होगा फिर, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 6, एंड देन वापस फिर लिखना पड़ेगा अपने को नेस्टेड इफ एल्स, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, हम लोग ले लेंगे ग्रेड, ले लेंगे क्या, ले लेंगे स्ट्रिंग
ग्रेड इक्वल्स टू, फिलहाल खाली छोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है इसमें? A percentage more than 70, then grade equals to distinction। और इसको फटाफट कॉपी करके एलसिफ डाल दो। एलसिफ मोर देन 60, देन फर्स्ट क्लास। एल्स इफ more than 50, then second class। more than 40, then pass class। और लास्ट में else क्या 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 लिखने का? You not say fail, you say not pass। What do you say? Not pass। And then once you have got all this data, अब इसको डिस्प्ले करना है ना, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे इसको? अभी अपन ने कहा डिस्प्ले किया है किधर? डिस्प्ले अपन ने किया है क्या? आउट डॉट प्रिंट करना पड़ेगा फिर अपने। क्या ये सब चीजें प्रिंट करनी पड़ेगी? जावा मार्क्स, पर ये सब हम लोग प्रिंट करेंगे किस में? एक H6 में प्रिंट कर देते हैं। जावा मार्क्स एक स्ट्रिंग है ना, ये एक वेरिएबल है, तो ये क्लोज करना पड़ेगा H6। ठीक है, अब ये पट 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 लिखते जाओ बस। हेडिंग है तो आफ्टर गिव बी आर। क्या H6 हेडिंग है ना, तो बी आर देना पड़ेगा नीचे। हाँ, क्या बात है सर, बहुत भारी है तुम लोग। H6 हेडिंग टैग क्या है? ब्लॉक लेवल है, क्या है? तो जावा के मार्क्स, पहले तो नाम देखिए ना, नाम पहले नेम लेंगे, तो नेम कहाँ से है? नेम कौन से वेरिएबल में है? स्टोर्ड नेम में है। फिर कौन से क्लास में है? तो वो किस में है? ये बूम क्यों मार रहा है? स्टूडेंट नाम से बूम क्यों मार रहा है? इनिशियलाइज नहीं किया है क्या? अभी डॉक्टर है ये। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया करो यूज करने से पहले, वो बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया स्टूडेंट नेम। फिर क्या? दूसरी स्टूडेंट क्लास है ना, स्टूडेंट क्लास। अभी क्या इशू आ रहा है? हो गया। और अभी एड्रेस ना, एड्रेस क्या था? स्टूड ऐड है ना। ओके, अब बाकी जावा मार्क्स, जावा मार्क्स, फिर PHP मार्क्स, फिर टेस्टिंग के मार्क्स, फिर SQL के मार्क्स, फिर प्रोजेक्ट के मार्क्स, और फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड, बहुत सारे दिखा रहा है। प्रोजेक्ट मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, और फिर परसेंटेज, और फिर ग्रेड। ओके, जावा मार्क्स तो हो गए। फिर अभी PHP मार्क्स, फिर टेस्टिंग के मार्क्स, फिर SQL के मार्क्स, फिर प्रोजेक्ट के मार्क्स, और फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स, और फिर टोटल
क्या टोटल क्या है? टोटल मार्क्स है क्या? टोटल मार्क्स फिर परसेंटेज और फिर ग्रेड। सही है भाई। चलो, सब कुछ हो गया है। एक बार सिर्फ एक थरली चेक कर लेते हैं, कहाँ से शुरू होगी कहानी और कहाँ खत्म होगी। तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स. When I click on next, it goes to the action stood and T1, T2, T3. ठीक है? The action stood takes me to student and student takes me to marks servlet. I come over here in the marks servlet. I read these T3 parameters, put them in the three variables, and I make three cookies by the same name, and I response and add the cookies back. Then I make a form whose action is result, method is post, and then I extract all these data, and when I click on the submit, it goes to the view name action and has a result, and then I should go to view result and view result servlet. And then what I do is from the cookie I read all the cookies, okay, and then I iterate to the cookies. Then I switch the cookie.get name. If I get a cookie by this name, I store its value in this variable which I've declared ऊपर. Simple as that. And then वहां से तो ये आ गए हैं पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर से तो, और फिर टोटल निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया, और फिर डिस्प्ले कर दिया. कुछ नया काम तो हुआ नहीं इसमें. ठीक है, लेट्स गो. Start running from, is my server shut down? Console clear. Okay. Let's run and see how it goes. Should behave as expected, ideally. Okay, let's start and run the code. So let's take Shreyas, class BE, address KKR. Next, आ गया, very good. Java 87, 91, 93, 95, 98, 98. View result. Oh my. Number format exception. लाइन नंबर 61. क्या हुआ? अपन श्रेयस को भी कन्वर्ट कर दे इंटीजर में. तुम लोग कुछ बोलते नहीं, तुम लोग ना सिर्फ सोते रहते क्लास में बैठे. ये तो अपन ने कन्वर्ट कर 61 में बोल रहा है वो. इधर क्या हो गया इसका? क्या बोल रहा है वो? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. अपन ने सबको कन्वर्ट कर लिए थे क्या जब अपन ने यहाँ पर आए मार्क्स सर्वलेट में? तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर T1 स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट क्लास है स्टूडेंट एड्रेस. ये तो स्ट्रिंग है ना? हाँ, ये तो इतना स्ट्रिंग है. चलेगा. फिर ये input type is text, name is T PHP T Java. Is there any mistake? हाँ, T टेस्ट है क्या? ओके, और फिर आपको नहीं दिए, टी नहीं दिए. ओ, क्या बात है सर, क्या बात. ठीक है, ये इशू था.
क्या बात है, वेरी गुड बॉय। हो गया रिरन? सर्वर सर्वर रिरन नहीं हुआ? हाँ भी हो रहा है, ठीक है। देखा, a small mistake and the entire thing collapses. You have to come again now. अब कुछ और नाम से लेंगे अपन, ठीक है। आदित्य से लेंगे। आदित्य अभी बी में डाल देंगे और पुणे में दे देंगे उसको। नेक्स्ट 87, 91, 93, 95, 98, 98 व्यू रिजल्ट आ गया। नेम इज आदित्य, क्लास इज बी, एड्रेस इज पुणे, जावा 87, 91, 93, 95, 98, 98 by 62, 93%। पीसी पास क्लास है। चलो जी, कैसे फेल हो गया अपना? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 डिस्टिंक्शन एल सिफ रह गया था एक, ठीक है ना। व्हाट अ शेम। वापस मारूंगा एक बार, हिट करके देखूंगा। बेटा नहीं आया बराबर, ठीक है, वापस जाते हैं। चलो अब किसका नाम लेने का? गौतम किसका नाम लेते हैं अपन? द मैम सिटिंग इन द मिडल बिटवीन माया एंड, अच्छा नेम इज धनश्री। हाउ डू स्पेल दैट? धनश्री, ठीक है। बी पुणे। नेक्स्ट, you give the same marks to her also. Okay, and now it is showing distinction. How was that? अब इसको अच्छे से ब्यूटीफाई करने का काम तुम लोग का है। इसको क्या ब्यूटीफाई करते हैं और कैसे, मुझे इसको टेबल पे दिखाना होगा। तो अगर हाँ, टेबल लगाना पड़ेगा, तो कहाँ लगाएंगे टेबल? टेबल यहाँ लगाएंगे ना हम लोग। अब H6 सब जगह निकालना पड़ेगा क्या फिर मुझे? क्या उसी को डाल देंगे टेबल के अंदर, H6 के साथ ही टेबल डाल देंगे। टेबल टैग, ठीक है। उसको एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। तो उसको ओपन किया है, तो उसको हम लोग फिर क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोज करते हो कितना क्लोज काफी है? सिर्फ टेबल क्लोज काफी है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। फिर अभी हमको करना पड़ेगा एक टी आर। क्या करना पड़ेगा? टी आर करना पड़ेगा। टी आर में क्या एंटर करेंगे आप? टी आर में क्या करेंगे आप? दो ना, सिर्फ दो कॉलम है ना सिर्फ, तो क्या करेंगे? दो ही कॉलम है ना, नेम और धनश्री, क्लास और बी, एड्रेस और पुणे, मार्क्स और ये सब्जेक्ट और मार्क्स। तो क्या बोलेंगे? टी आर क्या बोलेंगे? आउट डॉट प्रिंट टी एच, है ना। तो टी एच में पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, करेक्ट। और फिर क्या लिखेंगे उसके अंदर? मार्क्स, ओके। और फिर टी आर क्लोज। सही है, पहला रो क्लोज हो गया। फिर अभी तो बहुत टी आर करते बैठना पड़ेगा अपने को। हाँ, ये हर एक एक रो में आएगा। तो सबके लिए फिर ये कॉपी करना पड़ेगा और ये पेस्ट पेस्ट करना पड़ेगा। टी आर अभी टी डी है ना, टी डी करना पड़ेगा। टी डी, टी डी, टी डी, टी आर। अभी टी डी क्या होगा? नेम होगा और
स्टूडेंट नेम होगा, पर वो चूंकि स्ट्रिंग है, तो उसको फिर ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे, ताकि वो वेरिएबल का नाम वैल्यू आ जाए ना। ठीक है, अब इतने टीआर खेलते बैठने पड़ेंगे आपको। दूसरा टीआर क्या होगा? क्लास। वो क्लास कहाँ से लाएंगे? स्टोर्ड क्लास। सही है, ये भी हो गया। फिर वापस एक टीआर, उससे वो किससे? स्टोर्ड एड्रेस। ओके, फिर वापस एक टीआर। चलो वैसे एक ही टीआर दिखा रहा हूँ तुम लोग को, आगे तुम लोग कर लेना। क्या बोलेंगे? जावा। और जावा कहाँ से आएगा? जावा मार्क्स। सारे कर दूंगा पट 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 पट। जावा मार्क्स 2 3, जावा तो हो गए। पीएचपी और टेस्ट एसक्यूएल ना। जावा हो गया, पीएचपी, तो पीएचपी मार्क्स, फिर टेस्टिंग, तो उसके लिए क्या था? टेस्ट मार्क्स। वापस ये 3 कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो टेस्ट मार्क्स के बाद क्या था? एसक्यूएल, तो क्या था? एसक्यूएल मार्क्स। फिर क्या था? प्रैक्टिकल, तो क्या था? प्रैक्टिकल के मार्क्स। फिर प्रोजेक्ट, तो क्या था? प्रोजेक्ट। फिर वापस 3 बार पेस्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बाद टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज, और फिर ग्रेड। ठीक है, आई कैन कमेंट दिस आउट। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको, कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बाद में यूज कर सको। टीआर क्लोज, टेबल क्लोज, ऑल गुड। लेट्स सेव इट, लेट माय सर्वर रिस्टार्ट। It should have restarted by now. Okay, it has. Let's come here. Okay, student details. Now let's enter Alice, class TE में ले लेते हैं इसको, और इसका एड्रेस ले लेते हैं दिल्ली। नेक्स्ट पे आ गए, मार्क्स सेम ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, सब्जेक्ट मार्क्स, नेम एलिस, क्लास टी, एड्रेस दिल्ली, ये पीएचपी, ये ब्ला ब्ला ब्ला, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। सही है ना? तो ये तुम लोग इतना इस पे प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ सकते हैं। और 3 कुकी बन गए होंगे, 3 कुकी बन गए होंगे हमारे पास। कहाँ है हमारे पास? किधर है सेटिंग? और कहाँ पर है कुकी? मैनेज एंड डिलीट साइट डेटा, सी ऑल कुकी एंड साइट डेटा, कम ओवर हियर। कुकी कहाँ से आ रही थी? लोकल होस्ट से आ रही थी। क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहा? ओके, कुकी एंड साइट डेटा पे जाओ और क्या करो? सी ऑल कुकी एंड साइट डेटा। हाँ, लोकल होस्ट से था ना?
लोकल होस्ट क्यों नहीं आ रहा है लोकल होस्ट से? ओके यू गाइज मैन, अपन ने कहाँ रन कर रहे कोड को? इस ब्राउजर में ना, तो वहां कैसे बनेंगे एज के अंदर कुकी? नहीं बनेगी, तब इसके कुकी से देखते हो जा थोड़ा टेढ़ा है। ये क्रोम वाले के कुकीज को देखना, पहले सेटिंग्स में जाना, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, फिर थर्ड पार्टी कुकीज में क्या, और फिर किधर है, कहाँ दिख रहा है? सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशन, सर्च करते हैं इधर। लोकल होस्ट से 8 कुकीज आए मेरे पास, उसमें से 8 में से कौन से दिखते नहीं इसमें कुकीज यार। इसको आता है कुकीज देखने के लिए? इसको आता है क्या कुकीज से देखते हैं इसमें? 8 कुकीज तो आए, यहाँ दिख, क्या करना है क्या ऐसा? 8 कुकीज है, पर वो कुकी दिखा नहीं रहा है वो। कुकी दिखा नहीं रहा है। ये जगह हिट कर लेना, किधर? ये जो है इसको कहाँ हिट कर लेना, इसको कॉपी करके कहाँ रन कर लो, क्रोम पे डालो भाई इधर। सूर्य कुमार, क्या बात, सूर्य कुमार कोहली, टीई, कहाँ ये? 87, 91, 91, 91, 98, 98, ये रिजल्ट आ गया। अब कुकीज भी आ गए होंगे लोकल होस्ट से। रिफ्रेश करते हैं इसको, आ गए। कितने कुकी आ गए? 3 आ गए। लोकल से 3 कुकी आ गए। कौन है वो? स्टूड ऐड, स्टूड क्लास और स्टूड नेम। स्टूड ऐड पे गए तो क्या आएगा? कंटेंट क्या है? मुंबई है। स्टूड क्लास पे गए तो क्या आएगा? 3rd ईयर है। और स्टूड नेम पे गए तो क्या आएगा? सूर्य कुमार। और पाथ देखो, क्या कौन से पाथ से आ रहा है ये? कोई शक? कब बनी है? मार्च 18 को 10:38 को। कब खत्म, कब उड़ जाएगी ये? ब्राउजर क्लोज, कुकी गॉन। लेट्स चेक। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देख लेंगे ना, तो समझाने में समझने में आसानी होगी। यस, डज दिस सॉल्व योर डाउट नाउ मिस संजीवनी? स्टिल हैविंग कंसर्न्स? मुझे देखना था क्या, मैं एज पे, मुझे एज पे खोलना है ना, एज पे खोलना है मुझे। तो क्या था वही, वो ये था ना। ओके, और अभी देखते हैं कि मेरे पास कुकी है क्या। तो कहाँ जाते हैं हम लोग? सेटिंग, और वहाँ से कहाँ जाएंगे? प्राइवेसी है ना, नहीं, कुकी एंड साइड मोशन अलग ही है इसका। मैनेज एंड एडिट कुकीज में गए, सी ऑल कुकीज में गए, क्या सर्च किया? लोकल होस्ट। कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कुछ भी? क्योंकि ब्राउजर बंद, कुकीज गॉन, ये डिफॉल्ट है। वरना फिर क्या करो, सेट मैक्स एज करके आप फिर उसको लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। डज दैट आंसर योर डाउट्स अबाउट कुकीज? So are we good to go with